Okay, so um, good evening, everyone. So today we are starting the last chapter, that is understanding transaction management with your Spring. Okay, so transaction management तुम लोग ने I guess DBMS में किया रहेगा, database management system. वहाँ पे transactions थे. Okay, so वो transaction मतलब what एक sequence रहता है. Okay, so वो sequence follow करना पड़ता है to complete that particular transaction. So वो transaction विथ यूर स्प्रिंग कैसे करना है। सो उसके लिए ट्रांजैक्शन प्रोपोगेशन करके तुम लोग को अभी यहाँ पे ये चैप्टर में है। सो ट्रांजैक्शन प्रोपोगेशन में भी तुम लोग को वहाँ पे प्रोपोगेशन मीन्स व्हाट, कुछ स्टार्ट करना है, ओके उसको फैलाना है, यू नो ऐसे रहता है। सो फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट इट। सो उसके लिए रिक्वायर्ड, उसके बाद में सपोर्ट्स, नॉन सपोर्टेड, ये सब तुम लोग को मेथड्स है उस ट्रांजैक्शन प्रोपोगेशन के। सो वो हम लोग वन बाय वन देखने वाले हैं। सो उसके पहले वी विल जस्ट से कि लेट्स सी कि ट्रांजैक्शन क्या होता है। ओके, सो एज वी नो वेरी वेल, ट्रांजैक्शन इज व्हाट सी, तुम लोग ने ये एसिड प्रॉपर्टी तो किया रहेगा, कुछ थोड़ा बहुत याद आया रहेगा तो एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, राइट, ये तुम लोग का एसिड प्रॉपर्टी था ट्रांजैक्शन का। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट विद द introduction of your transactions. Okay, so a transaction is an action or a series of actions that are being performed by a single user or application program which reads or update the contents of your database. Correct, action perform होते हैं series wise और उसको हम लोग transaction बोलते हैं. A transaction can be defined as a logical unit of work on the database. This may use entire program or a piece of program, right? Single command like SQL commands, like such as insert and update. Okay, so ये सारे insert, update, ये delete, ये सारे commands use करके हम लोग properly transaction complete करते हैं. And it may engage any number of operations on the database. In the database context, the execution of application program can be thought of as one or more transaction with non-database processing taking place in between. ओके, सो उसके बाद में हम लोग को अगर कोई ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है तो उसके बाद में हम लोग कमिट करते हैं। अगर कोई ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ सो वी विल डू द रोल बैक, राइट। सो दीज आर द थिंग्स वहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। The traditional the traditional relational database design transactions are completed by commit. Commit हम लोग वो command है, if you know, right? So commit or rollback SQL statements which indicates a transaction beginning or end. Okay, so उन्होंने उनका जो acid property है, okay, जो transactions में use होता है वो property उन्होंने यहाँ पे discuss किया हुआ है. Okay, so acid property means first A for atomicity. The transaction must be fully complete, saved, committed. Save मतलब committed और completely undone. मतलब पूरा रोल बैक फर्स्ट स्टेप से फिर से, ओके, रोल बैक ऐसे करना पड़ेगा. मस्ट बी फुल्ली कंप्लीट, सेव, और एक तो पूरा अनकम्प्लीट ऐसे अनडन रहना चाहिए. अ सेल इन अ रिटेल स्टोर डेटाबेस इलस्ट्रेट्स अ सिनारियो विच एक्सप्लेन्स एटोमिसिटी. एग्जाम्पल द उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, द सेल कंसिस्ट ऑफ इन्वेंट्री रिडक्शन एंड अ रिकॉर्ड ऑफ इनकमिंग कैश. both either happen together or do not happen. It's all or nothing. मीन्स तुम लोग कुछ अमेजोन, फ्लिपकार्ट या कोई वेबसाइट पे शॉपिंग कर रहे हो, अगर तुम लोग ने उसको बाय किया, तुम लोग के अकाउंट से कैश तो गया बट वो प्रोडक्ट तुम लोग का बाय नहीं हुआ. सो वो क्या हुआ, ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट हुआ. तो वैसे नहीं होना चाहिए, तो वो पूरा रोल बैक करना पड़ेगा कि हाँ तुम लोग का वो जो पैसे है वो भी रिटर्न जाना चाहिए बैंक में और पूरा ट्रांजैक्शन कैंसिल होना चाहिए, राइट. सो कंसिस्टेंसी, द ट्रांजैक्शन मस्ट बी फुल्ली कंप्लेंट with the state of the database as it was prior to the transaction. In other words, transaction cannot break the database constraints. Okay, जो constraints हैं वो.
For example, if the database table's phone number column can only contain numerals, then consistency dictates that any transaction attempting to enter the alphabetical letter may not commit. See, consistency मतलब तुम लोग के पास में जो डेटा मिल रहा है तुम लोग को, ओके, सो अगर तुम लोग ने डेट ऑफ बर्थ डाला तो वहां पे डेट ऑफ बर्थ ही आना चाहिए, कुछ रैंडम नंबर्स नहीं आना चाहिए। फोन नंबर दिया है तो वो 10 डिजिट का जो फोन नंबर है वो। सो इससे क्या होगा, तुम लोग का डेटा जो है वो प्योर और फिल्टर्ड रहेगा। सो तुम लोग को कुछ भी कम्युनिकेशन करना है विथ योर कस्टमर्स, यू कैन डू दैट, राइट। इसलिए वो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसलिए वो वहाँ पे बताया है जो कंस्टेंट्स हम लोग लगाते हैं व्हाइल क्रिएटिंग द डेटाबेस टेबल्स। सो वो कंस्टेंट्स जो है नॉट नल, या तो फिर तुम लोग की जो डिफॉल्ट कंस्टेंट्स हैं वो सब तुम लोग को, प्राइमरी नंबर, फॉरेन की, प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सारी कंस्टेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इन दिस केस, राइट। So the next one is isolation. Transaction data must not be available to other transaction until the organization or original transaction is committed or rolled back, right? Isolate रहना चाहिए ऐसे। Then durability. Transaction data changes must be available even in the event of database failure. Okay, so अगर कुछ प्रॉब्लम है, डेटाबेस से कनेक्टिविटी नहीं हो रही है, सो इट विल बी अ मोर प्रॉब्लम, राइट। सो वो ट्रांजेक्शन्स नहीं हो पाएंगे बिकॉज ऑफ सर्वर डाउन है, जहाँ पे तुम लोग का डेटाबेस सेव है वो सर्वर डाउन है। सो ऐसे नहीं होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ दूसरा सर्वर पे उसका बैकअप रहना चाहिए और उधर से सब कुछ मैनेज होना चाहिए। सो दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ योर ट्रांजेक्शन। ओके, उसको एसिड प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। ओके, सो दिस इज योर ट्रांजेक्शन। अभी ये ट्रांजेक्शन तुम लोग को क्या करना है, स्प्रिंग के साथ यूज करना है, राइट। सो दिस इज योर ट्रांजेक्शन प्रोपोगेशन। So what is exactly transaction propagation? We'll see. ये डायग्राम देख के कुछ समझ में आ रहा है क्या? देखो यहाँ पे ये इन्होंने ट्रांजैक्शन प्रोपोगेशन एक्सप्लेन किया हुआ है। You can see over here service 1, service 2, service 3, 4, 5। ओके, और उसके अंदर कुछ ट्रांजैक्शन है। सर्विस 1 के अंदर ट्रांजैक्शन T1 चल रहा है, यहाँ पे भी ट्रांजैक्शन T1 चल रहा है सर्विस 2 के अंदर। In your service 3 and service 5, transaction 2 is running, and in your service 4, transaction T3 is running. So this is the thing. अभी हम लोग एग्जैक्टली देखते हैं कि स्प्रिंग का ट्रांजैक्शन प्रोपोगेशन के साथ क्या होता है। मैंने यहाँ पे कुछ एक नेट पे सर्च किया था, सो विल डिस्कस दिस थिंग फर्स्ट कि सिंपल वे में। वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मैंने यहाँ पे ये सिंपल वे में निकाला। व्हाट इज प्रोपोगेशन? Propagation in Spring transaction determines how transactions should behave when they are nested within other transactions. ओके, एक दूसरे के अंदर वो मतलब एक ही ट्रांजैक्शन चल रहा है ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ही तुम लोग में से अभी तुम लोग 25 स्टूडेंट्स हो, 28 स्टूडेंट्स हो, तुम लोग अभी एक साथ में कुछ बाय कर रहे हो। सो एक टाइम पे एक ही ट्रांजैक्शन चलता है ऐसा तो नहीं है, नेस्टेड रहता है, राइट। सो उसको क्या कर रहा है, प्रॉपरली उसको हैंडल होना चाहिए, राइट। सो इसलिए वहाँ पे प्रॉपरली लिखा है डिटरमाइंस हाउ ट्रांजैक्शन शुड बिहेव व्हेन दे आर nested within the other transactions. So here are the available propagation options. So in Spring, transaction represents a single unit of work that must be performed automatically. Transactions ensure that consistency and integrity by providing the ability to undo changes if error occurs. कुछ error आ गया तो उसको वो properly handle करना चाहिए, right? इसलिए वो हम लोग यूज करेंगे। Spring uses a transaction manager. ये देखो, ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है? ट्रांजैक्शन मैनेजर उसको यूज करता है टू मैनेज ट्रांजैक्शंस एंड इट सपोर्ट्स वेरियस प्रोपोगेशन बिहेवियर्स। जो मैं अभी बोल रही हूँ, अलग अलग सिनारियोज रहेंगे प्रोपोगेशन के, वो कंट्रोल करना है, टू कंट्रोल हाउ ट्रांजैक्शन आर हैंडल्ड, right? So transaction manager to manage transaction and it supports various propagation behaviors to control how transactions are handled. So वहाँ पे जो तुम लोग
हम लोग ये जो पीडीएफ देख रहे थे, तो एकदम स्टार्टिंग में ये जो थे, ये क्या है, अलग अलग सिनारियोज है। रिक्वायर्ड, सपोर्ट्स, नॉट सपोर्टेड, रिक्वायर्स, न्यू, नेवर, मैंडेटरी। सो दीज आर द थिंग्स which comes in your transaction propagation। राइट, समझ में आया एग्जैक्टली हम लोग अभी ये क्या करने वाले हैं? ओके, सो वी विल सी कि वन बाय वन हर एक जो है सिनारियो उसमें क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इन सिंपल वर्ड्स यहाँ पे है, तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, क्योंकि इसको जो ये वेबसाइट है इसको लॉग इन करना पड़ रहा था, सो तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है, पीडीएफ फाइल में तो है ही, डोंट वरी, आई विल शो यू। ओके, सो यहाँ पे उन्होंने सिंपल में बताया है। फर्स्ट क्या था, रिक्वायर्ड था। ओके, रिक्वायर्ड मतलब डिफॉल्ट ऑप्शन। ओके, इफ अ ट्रांजैक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट, द मेथड विल एग्जीक्यूट विद इन दैट ट्रांजैक्शन। सो ये एक मेथड है रिक्वायर्ड वाला, वो क्या है, डिफॉल्ट वाला है। और ये कब होता है, इफ अ ट्रांजैक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर वो ट्रांजैक्शन ऑलरेडी बनाया हुआ है तो the method will execute within that transaction. If no transaction exists, a new will be started. Okay, required मतलब नहीं है तो बना दो, ओके okay? और है तो उसमें ही वो मेथड एग्जीक्यूट करेगा। सो सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है, यूजफुल फॉर टिपिकल रीड राइट ऑपरेशंस वेयर एटोमिसिटी इज रिक्वायर्ड। राइट, so next is what, requires new। Okay, always start a new transaction even if one already exists। This is the best। Okay, मतलब वो तुम लोग को हाईलाइट करके रख दो तुम लोग। क्या है कि वो हमेशा क्या करेगा, ये पहले वाला क्या था, रिक्वायर्ड वाला, वहां पे बताया था उन्होंने कि अगर ऑलरेडी है तो वो क्या करेगा, उसमें ही अपना जो मेथड है उसको एग्जीक्यूट करने वाला है। फाइन, बट यहाँ पे रिक्वायर्स न्यू में क्या है, ये हमेशा खुद का न्यू जो है मेथड वो स्टार्ट कर देगा, ऑलवेज स्टार्ट्स अ न्यू ट्रांजैक्शन इवन इफ one already exists, then suspend the existing transaction until the new one is complete। ओके, जो पहले वाला इसको सस्पेंड कर देगा। ओके, इफ यू वांट टेक द स्क्रीनशॉट अगेन, आई एम सेइंग, क्योंकि ये बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा सा पीडीएफ में डिफिकल्ट लिखा हुआ है वर्डिंग्स एंड ऑल, तो तुम लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम लोग ये रखो। उसके बाद में उसको रेफर करके कुछ लॉजिक तुम लोग देख सकते हो कि क्या सिमिलरिटी है उसमें। ओके, ओके, सो इसमें अभी एग्जांपल दिया है, यूजफुल व्हेन यू वांट टू एंश्योर दैट द स्पेसिफिक ऑपरेशन इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड इन न्यू ट्रांजैक्शन। सो ऐसे भी कुछ ट्रांजैक्शंस रह सकते हैं कि जो फर्स्ट टाइम तुम लोग को, मतलब पहले भी किया हुआ है पर तुम लोग को वो नया ही करना है। फॉर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल देख सकते हैं, लाइक सेशंस। सेशंस क्या रहता है, हर एक टाइम हम लोग जो लॉग इन होता है यूजर का, न्यू सेशन क्रिएट होता है, राइट। सो दैट टाइम जो ऑलरेडी अगर कुछ सेशन उसमें है तो वो हम लोग को कैंसिल करना पड़ेगा। लाइक बैंक का लॉगिन किया हुआ है, आफ्टर सम मिनट्स अगर तुम लोग ने उस पे तुम लोग एक्टिव नहीं रहे तो वो लॉग आउट हो जाता है, देन वी हैव टू क्रिएट न्यू फ्रेश वन, राइट। सेशन उसका क्रिएट करना पड़ता है यूजर का, सो दैट टाइम यू कैन यूज लाइक दिस। सो वो ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट रहेगा, सो रिक्वायर्स न्यू का यूज हो जाएगा। देन नेक्स्ट वन इज सपोर्ट्स। ओके, सो सपोर्ट्स में क्या है, पार्टिसिपेट्स इन अ ट्रांजैक्शन इफ वन ऑलरेडी एग्जिस्ट। ट्रांजैक्शन ऑलरेडी है तो उसमें वो पार्टिसिपेट करेगा। डज नॉट स्टार्ट अ न्यू ट्रांजैक्शन इफ वन डज नॉट एग्जिस्ट। अगर उसको बोलेंगे कि हाँ T2 में ट्रांजैक्शन करना है बट T2 है ही नहीं, ट्रांजैक्शन 2 है ही नहीं, सो वो क्या करेगा, इट विल नॉट स्टार्ट। बट अगर मैंने बोला कि हाँ मेरे पास ट्रांजैक्शन 3 अवेलेबल है, ओके, सो वो क्या करेगा, उसमें सपोर्ट अगर तुम लोग ने लिखा है तो उसमें वो पार्टिसिपेट करेगा। इट इज लाइक योर सर्विसेज। अगर कोई ट्रांजैक्शन चल रहा है तो ट्रांजैक्शन में हम लोग अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं, रीड ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन। ओके, सो जो भी तुम लोग मेथड्स यूज करते हो, दैट मेथड इज लाइक योर सर्विसेज। तुम लोग ट्रांजैक्शन के सर्विसेज यूज करते हो, ओके, सो दैट टाइम वी नीड दिस थिंग्स। ओके, सो एग्जाम्पल उन्हें दिया हुआ है, यूजफुल फॉर रीड ओनली ऑपरेशंस दैट कैन बी पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन
but don't necessarily need to be. Okay, so next thing is mandatory. मैंडेटरी में क्या रहेगा, उसके नाम में ही है, requires that transaction already exist. Okay, if transaction doesn't exist, an exception is thrown. Okay, so वो exception throw करेगा is the main part, mandatory है. Okay, so simple example useful when you want to enforce that the method must be called within an existing transaction. Then non-supported specifies that the method should not participate in transaction at all. Okay, suspends any existing transaction. मुझे सपोर्ट ही नहीं करना है बस, तो ये वही है, not supported specified that the method should not participate in that particular transaction at all. Suspend कर देगा वो खुद को. So useful for non-transactional operation within a transactional context. ओके एग्जैक्टली मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल तुम लोग सिर्फ विंडो शॉपिंग कर रहे हो, यू आर नॉट बाइंग एक्चुअली, कुछ एक्चुअल ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रहा है, सिर्फ रीड ऑपरेशंस हो रहा है, रीड राइट ऐसे करके ऑपरेशंस नहीं हो रहा है, राइट. सो दैट इज द थिंग. देन नेवर. नेवर में क्या है, specifies that a method should never be called within a transaction if a transaction is active and exception is thrown. मतलब क्या है, अगर कोई ट्रांजैक्शन चल रहा है, ओके, और मैंने नेवर को यूज किया, नेवर मेथड को यूज किया, तो वो चेक करेगा ट्रांजैक्शन एक्टिव है या उसको मतलब वो होल्ड पे है, वेट पे है, यू नो ना, अलग अलग स्टेट्स रहते हैं, वेटिंग स्टेट वगैरह, सस्पेंड वगैरह. तो वो चेक करेगा एक्टिव है क्या, अगर वो एक्टिव है तो वो एक्सेप्शन थ्रो करने वाला है. Okay, so specify that the method should never be called within a transaction. Useful when you want to enforce that a method must not be called within a transaction, right? So this is your never, and the last one it's we supports हो गया, I guess. Yeah, supports हो गया. If a transaction is active, the method will run within it. If a transaction is not active, the method will run outside of the transaction. Okay, so यहाँ पे ऑटोमेटिक एंड मैनुअल रोल बैक दिया है, पर ये तुम लोग के सिलेबस में नहीं है, बट यू नो वेरी वेल ये रोल बैक क्या होता है. ऑटोमेटिक रोल बैक मतलब हम लोग वहाँ पे देखो, दिस अकर्स व्हेन रन टाइम एक्सेप्शन इज थ्रोन फ्रॉम ट्रांजैक्शनल मेथड, और मैनुअल में हम लोग को एक्चुअली ऐसे मेथड को कॉल करके बताना पड़ता है मैनुअल रोल बैक में. ओके, सो दिस इज नॉट योर सिलेबस टॉपिक, बट या ऑफकोर्स यहाँ तक तुम लोग का ये सिलेबस था. okay? तो जैसे मैंने बोल तुम लोग को बोला प्रोपोगेशन रिक्वायर्ड, देन बाद में प्रोपोगेशन डॉट रिक्वायर्स न्यू, ये सब तुम लोग को है, बट अभी ये हम लोग ये वेबसाइट से नहीं देखते, हम लोग पीडीएफ फाइल से देखते हैं. दैट इज ओके. सो वी विल चेक. अभी हम लोग ने जस्ट देखा कि ये सारे जो है रिक्वायर्ड, सपोर्ट्स, नॉट सपोर्टेड, रिक्वायर्स न्यू, नेवर, मैंडेटरी, ये सारे जो मेथड्स हैं तुम लोग के ट्रांजैक्शन प्रोपोगेशन के, वो अभी हम लोग एग्जैक्टली क्या है वो वन बाय वन देखते हैं. सो दिस इज योर ट्रांजैक्शन. जैसे तुम लोग को मैंने बोला ट्रांजैक्शन रिप्रेजेंट द सीरीज ऑफ डिफरेंट एक्शंस. सो यहाँ पे सी, अभी यहाँ पे उन्होंने ना सिनारियो लिया है, सर्विस, ऑफकोर्स सर्विस के बारे में है, यू नो ना, कि मैंने जस्ट तुम लोग को बताया कि वो सर्विसेज क्रिएट करता है. So we will discuss the client side example to represent the propagation of transaction in Spring as follows. So call using organization service. So वो दो सर्विसेज बनाते हैं, यू नो ना, माइक्रो सर्विसेज वगैरह से रहते हैं, वैसे वो उन्होंने दो सर्विसेज बनाए हैं, ऑर्गेनाइजेशन सर्विस एंड एम्प्लॉय सर्विस. सो एक में क्या कर रहे हैं, वो डायरेक्टली क्लाइंट है, वो ऑर्गेनाइजेशन सर्विस को कॉल करेगा, उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन सर्विस एम्प्लॉय सर्विस को कॉल करेगा. ऐसे उन्होंने एग्जाम्पल लिया है. और दूसरा क्या सिनारियो लिया है कि डायरेक्टली क्लाइंट क्या कर रहा है, अपने जो एम्प्लॉय सर्विसेज है उससे ही उसको ही कॉल कर रहा है. सो दीज आर द थिंग्स, उन्होंने दो एग्जाम्पल लिए हुए हैं और उसके ऊपर ही पूरा नीचे का एक्सप्लेनेशन उन्होंने डिस्कस किया हुआ है, वो जो सारे सिनारियोज हम लोग ने देखे वो. ओके, so these are the two things, call using organization service and call the employee service directly.
So as the employee service may also be called directly, we will need to use transaction annotation with employee service also. So both the service, organization service and the employee service will be using transaction annotation. दोनों को भी वो transaction annotation use करना पड़ेगा. So we will be looking the various propagation scenarios by observing the behavior of the organization and employee service. There are 6 types of transaction propagations, right? ये सारे. So first one is transaction propagation required. Okay. Okay, so यहाँ पे तुम लोग थोड़ा zoom करते हैं. Okay, so यहाँ पे देखो executed in transaction T1 और executed in transaction T1 ऐसे ही लिखा है. पर यहाँ पे देखो अब ये तुम लोग को properly read नहीं होगा. Begin लिखा है, begin transaction T1 और यहाँ पे end transaction लिखा है, same begin और यहाँ पे end. So वो first यहाँ पे at the rate transaction transactional ऐसे जो है वो लिखा है. उसके बाद में प्रोपोगेशन इज इक्वल टू प्रोपोगेशन डॉट रिक्वायर्ड, जो फर्स्ट वाला है प्रोपोगेशन रिक्वायर्ड, उसको हम लोग कॉल करेंगे. और उसमें क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय सर्विस इंसर्ट एम्प्लॉय मेथड होगा. ओके, सी ट्रांजैक्शन रिक्वायर्ड में फर्स्ट थिंग इज व्हाट कि वो क्या करेगा कि एक न्यू ट्रांजैक्शन क्रिएट करेगा ऑलवेज. ओके, सो वही है, फर्स्ट वो क्या कर रहा है, इंसर्ट एम्प्लॉय कर रहा है. ओके, यहाँ पे वो डायरेक्टली कर रहा है. यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेम एट द रेट ट्रांजैक्शनल प्रोपोगेशन ओके इज इक्वल टू प्रोपोगेशन डॉट रिक्वायर्ड. ओके, उसके अंदर हम लोग फर्स्ट क्या करें, ऑर्गेनाइजेशन सर्विस जॉइन ऑर्गेनाइजेशन. सो ऑर्गेनाइजेशन का सर्विस हम लोग यूज कर रहे हैं, सो उसको पहले ऑर्गेनाइजेशन का सर्विस जॉइन ऑर्गेनाइजेशन मेथड कॉल करेगा. एंड देन ओवर हियर सेम है, देखो at transactional propagation dot required. Okay, employee service insert employee. So वो insert employee को ही directly पहले join करने के बाद में second step it will insert that employee. तो उन्होंने वही explain किया हुआ है यहाँ पे, हम लोग बाद में भी देख सकते हो. So here both the organization service and the employee service have the transaction propagation defined as required, राइट. तो वहां पे वो रिक्वायर्ड करके था. ओके, डॉट रिक्वायर्ड कैपिटल में है, देखो, राइट. सो वो है, दिस इज द डिफॉल्ट ट्रांजैक्शन प्रोपोगेशन, हम लोग ने देखा था वहां पे, राइट. यहाँ पे उन्होंने बताया था कि जो रिक्वायर्ड वाला वो क्या है, डिफॉल्ट रहता है, राइट. सो सेम थिंग. अभी यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, कुछ कोड थ्रू एक्सप्लेन किया है. वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल, बट जस्ट जो बेसिक हाइलाइट्स है वो मैं तुम लोग को बताती हूँ. सी फर्स्ट थिंग हम लोग सर्विसेज यूज कर रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ पे एड सर्विस यूज किया है. ट्रांजैक्शनल यूज कर रहे हैं, तो इसलिए वो भी है. ओके, ऑटो वायर्ड कर रहे हैं, ओवरराइड कर रहे हैं, सो वो भी मेंशन किया हुआ है. सो दिस इज योर क्लास, एक क्लास लिया है उन्होंने. ओके, ऑर्गेनाइजेशन सर्विस एम इम्पॉर्टेंट वन करके ऐसे उन्होंने बताया है, बनाया है. और जो इंटरफेस है ऑर्गेनाइजेशन सर्विस, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो लोग. ओके, अभी नेक्स्ट थिंग उन्होंने यहाँ पे देखो एम्प्लॉय सर्विस का एक ऑब्जेक्ट बना के रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस और उसका एक ऑब्जेक्ट बना के रखा है. सो जस्ट उन्होंने कुछ ऐसा एग्जांपल लिया है सिंपल एम्प्लॉय के लिए. सो फर्स्ट वो क्या किया है, यहाँ पे देखो मेथड जॉइन ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो जॉइन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय, उसके पैरामीटर में एम्प्लॉय लिया है, दैट इज उसका एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन रहेगा. और यहाँ पे एम्प्लॉय हेल्थ इंश्योरेंस, ओके, उस वो सेकेंड पैरामीटर लिया है. एंड जस्ट उसका आईडी लेके दे आर चेकिंग कि EMP1 इज अवेलेबल और नॉट, अदरवाइज वो एक्सेप्शन थ्रो करने वाले हैं, राइट, लाइक दैट. इंसर्ट एम्प्लॉय. ओके,
सो आई गेस दिस ऑर्गेनाइजेशन सर्विस नेचर रहेगा। नहीं मेंशन किया है। एनीवेज आई थिंक मुझे ऐसा लगा था कि उन्होंने ये इंटरफेस कुछ मेंशन किया रहेगा पर नहीं किया है। फाइन। सो लाइक दिस उन्होंने यहाँ पे देखो ये फर्स्ट उन्होंने क्लास क्रिएट किया ऑर्गेनाइजेशन सर्विस EMP1 करके। और अगर वहाँ पे तुम लोग जॉइन ऑर्गेनाइजेशन ये मेथड उन्होंने फर्स्ट कॉल किया जैसे हम लोग ने डायग्राम में देखा। ओके क्या करना पड़ेगा, जॉइन ऑर्गेनाइजेशन मेथड कॉल करना पड़ेगा एंड देन वी कैन कॉल इंसर्ट एम्प्लॉय मेथड, राइट। सो इंसर्ट एम्प्लॉय मेथड उन्होंने कहाँ पे किया है, ओवर हियर सी, राइट। सो वो उसके अंदर से ये मेथड के अंदर से दूसरा मेथड वो कॉल कर रहा है, सिंपल। अगर नहीं है उसको नहीं मिला एम्प्लॉय आईडी, राइट, गेट एम्प्लॉय आईडी डॉट इक्वल्स EMP1। EMP1 उन्होंने एक एग्जांपल लिया तो वो क्या करेगा, सिंपल ट्रांजैक्शन को एक्सेप्शन में उन्होंने क्या किया है, ट्रांजैक्शन रोल बैक किया है, थ्रोइंग एक्सेप्शन टू टेस्ट ट्रांजैक्शन रोल बैक। ओके वैसे ही उन्होंने और एक भी लीव ऑर्गेनाइजेशन करके भी मेथड बनाया हुआ है और उसमें उन्होंने डिलीट करने के लिए रखा है। अगर वो एम्प्लॉय लीव कर रहा है तो राइट, तो उसको डिलीट भी करना पड़ेगा। सो उसके लिए भी उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है। ओके सो द एम्प्लॉय सर्विस विल बी एज फॉलोज। सर्विस, अच्छा यहाँ पे उन्होंने सर्विस जो है वहाँ पे एम्प्लॉय का वो बताया है, ऑर्गेनाइजेशन का था, यहाँ पे एम्प्लॉय का है। सेम सी यू कैन सी ट्रांजैक्शन और सर्विस। ओके दोनों भी यहाँ पे मेंशन किया है। सेम यहाँ पे भी उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है एम्प्लॉय सर्विस को। ओके एंड देन यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन को नहीं क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली इंसर्ट एम्प्लॉय कर रहे हैं, राइट। तो दे ये जो फर्स्ट वाला था दिस वन, they are directly adding insert employee, right, insert employee method को directly call कर रहे हैं। So these are the things। okay so then ये यहाँ पे insert हो रहा है, यहाँ पे ये delete employee by ID करके delete भी हो रहा है। तो ये तुम लोग का फर्स्ट स्टेप हो गया डिफॉल्ट वाला, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जस्ट क्रिएट करेंगे। ओके ट्रांजैक्शन इज क्रिएटिंग। सी यहाँ पे आउटपुट में उन्होंने लिखा है क्रिएटिंग न्यू ट्रांजैक्शन विथ नेम, और वो जो है वैसे, देन कमिटिंग JDBC ट्रांजैक्शन ऑन कनेक्शन। ओके सो वैसे उन्होंने यहाँ पे एम्प्लॉय सर्विस कॉल यूजिंग ऑर्गेनाइजेशन सर्विस से बताया है। और ये तुम लोग का एम्प्लॉय सर्विस कॉल्ड डायरेक्टली creating new transaction with name, okay, and committing JDBC transaction on connection। सो ये ऐसे करके तुम लोग का आउटपुट आएगा। ओके सो नेक्स्ट इज योर सपोर्ट्स। सपोर्ट्स में क्या है, ट्रांजैक्शन प्रोपोगेशन सपोर्ट्स एग्जीक्यूटेड इन नो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूटेड इन ट्रांजैक्शन 1। ओके अभी ट्रांजैक्शन नहीं है तो वो क्या करेगा, और एग्जीक्यूटेड इन ट्रांजैक्शन T1, ट्रांजैक्शन T1 है तो उसके अंदर वो क्या करेगा वो उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। सो हियर बोथ द ऑर्गेनाइजेशन सर्विस हैज द ट्रांजैक्शन प्रोपोगेशन डिफाइंड as required, while employee service the transaction propagation is defined as supports। so तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डायग्राम में at transactional propagation is equals to propagation supports यही लिखा है। ओके एंड इट इज डायरेक्टली कॉलिंग इंसर्ट एम्प्लॉय मेथड जैसे पहले वाला था, बट यहाँ पे वो सपोर्ट मेथड के साथ में इंसर्ट एम्प्लॉय करेगा। बट क्या था यहाँ पे, एग्जीक्यूटेड इन नो ट्रांजैक्शन। अगर एग्जीक्यूटेड इन ट्रांजैक्शन T1 है तो वो क्या करेगा, सी प्रोपोगेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड यूज किया, तुम लोग ध्यान से देखो
हम लोग सपोर्ट्स ही देख रहे हैं, बट यहाँ पे क्या किया, प्रोपोगेशन डॉट रिक्वायर्ड किया है। रिक्वायर्ड क्या चाहिए उसको, वो जो फर्स्ट सर्विस था दैट इज जॉइन ऑर्गेनाइजेशन मेथड, वो उसको चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन सर्विस जॉइन ऑर्गेनाइजेशन, फाइन। उसके बाद में इट विल गो फॉर योर सपोर्ट्स, ट्रांजैक्शनल प्रोपोगेशन इज इक्वल टू प्रोपोगेशन डॉट सपोर्ट्स एम्प्लॉय सर्विस इंसर्ट एम्प्लॉय मेथड, राइट। सो वही उन्होंने नीचे भी एक्सप्लेन किया हुआ है। इफ द इंसर्ट एम्प्लॉय मेथड इज कॉल्ड डायरेक्टली इट डज नॉट क्रिएट ओन न्यू ट्रांजैक्शन, ओके। If the insert employee method is called from another service, ये एक दूसरी सर्विस है, right? So if the calling service method has transaction, then method makes use of the existing transaction, right? Already है तो उसका use करेगा. If the calling service method does not have transaction, then the method will not create new transaction. So in the case of supports, the insert employee method will make use of calling service transaction if it exists. Else, it will not create new transaction but run without transaction. Okay. So वो जो फर्स्ट उसने जो ज्वाइन ऑर्गेनाइजेशन किया है वो चाहिए उसको, उसके बाद में ही वो क्या करेगा, इंसर्ट वाला करेगा। तो दिस इज द थिंग। सेम यहाँ पे वैसे ही कोड है, ओके। तुम लोग को सर्विस एंड ट्रांजैक्शनल यूज करना है, ऑटो वायर्ड ओवरराइड सब मेथड्स यूज किए हैं, हाउ टू जॉइन, सी यहाँ पे जॉइन ऑर्गेनाइजेशन है, इंसर्ट एम्प्लॉय है, सो दिस थिंग्स दे हैव यूज्ड, ओके। थोड़ा सा उसमें चेंजेस रहेगा, ओके। देन अगर एम्प्लॉय सर्विस है तो उसके लिए अलग से कोड है, ट्रांजैक्शनल प्रोपोगेशन डॉट सपोर्ट्स, यहाँ पे वो डायरेक्टली किया है, उनको वही हाईलाइट करना है कि वहां पे क्या किया था, ऑर्गेनाइजेशन का यूज किया था, राइट। बट यहाँ पे वो डायरेक्टली ऐसे सपोर्ट्स कर रहे हैं, okay? ओके, द नेक्स्ट थर्ड वन इज योर नॉट सपोर्ट्स, ओके। नॉट सपोर्ट्स में देखो क्या है, ट्रांजैक्शन प्रोपगेशन नॉट सपोर्टेड। अभी यहाँ पे देखो सिनेरियोस क्या है, एग्जीक्यूटेड इन नो ट्रांजैक्शन, executed in transaction T1, then executed in no transaction again. Okay, so see जो कोड है उसमें कैसे है, ट्रांजैक्शन प्रोपोगेशन इज इक्वल टू प्रोपोगेशन डॉट नॉट सपोर्टेड, और वो एम्प्लॉय सर्विस के इंसर्ट एम्प्लॉय मेथड को कॉल करेगा। इन दिस वो क्या कर रहा है, रिक्वायर्ड, सी फिर से वहां पे वो जो फर्स्ट वाला है डिफॉल्ट वाला रिक्वायर्ड उसको ही यूज करेगा टू जॉइन ऑर्गेनाइजेशन सर्विस, राइट। एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज वो क्या करेगा, जो उसका नॉट सपोर्टेड है उसको यूज करेगा, right? So if the insert employee method is called directly, it does not create own new transaction, of course, right? If the insert employee method is called from another service, तो क्या होगा, first, if the calling service method has transaction, then method does not make use of existing transaction, neither does not it create its own transaction. It run without that particular transaction. If the calling service method does not have transaction, then the method will not create new transaction and run without transaction. So these are the two things. अगर वो calling service method है तो वो क्या होगा, और नहीं है so वो क्या करेगा, new create करेगा and run without that transaction. So in the case of not supported, the insert employee method never run in transaction, करेक्ट, सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, इसलिए वैसे वहां पे लिखा है रन विदाउट ट्रांजैक्शन इन द बोथ केसेस, राइट। ये तो सिंपल था कि वो सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। Here the organization service will define the transaction propagation required
Okay, and the employee service have the transaction propagation defined as not supported. So again कोड एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पे सर्विस है, ट्रांजैक्शनल है, ओके और एम्प्लॉय के यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली दिया है कि दैट इज ट्रांजैक्शन प्रोपोगेशन इज व्हाट is equals to propagation dot not supported, right? So see over here, यहाँ पे आउटपुट में वो नॉट सपोर्टेड है इसलिए सस्पेंडिंग करंट ट्रांजैक्शन ऐसे करके वो आउटपुट देगा. So resuming suspend transaction after completion of inner transaction. So these are the things happen कि वो क्या करेगा, ट्रांजेक्शन सस्पेंड कर रहे हैं एंड बाद में हम लोग को अगर चाहिए तो हम लोग उसको रिज्यूम भी कर सकते हैं, राइट? ओके, देन हम लोग ने रिक्वायर्स देखा था, उसके साथ हम लोग ने रिक्वायर न्यू भी देखा था. रिक्वायर न्यू मतलब व्हाट, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है या नहीं है, वो खुद को नया एक ट्रांजैक्शन क्रिएट करेगा ही, राइट? एग्जीक्यूट करेगा ही, लाइक दिस. सो यहाँ पे देखो सिनेरियो क्या है, ट्रांजैक्शन प्रोपोगेशन रिक्वायर्स न्यू, so executed in transaction T1, executed in transaction T1 and this is executed in transaction T2. So first देखते हैं इसका क्या हो रहा है. See, ट्रांजेक्शनल प्रोपोगेशन डॉट रिक्वायर्स न्यू, ये तो सिंपल है कि हम लोग डायरेक्टली यूज कर रहे हैं एम्प्लॉय सर्विस को और इंसर्ट कर रहे हैं एम्प्लॉय को. So if the insert employee method is called directly, it creates a own new transaction. वो खुद का नया बना देगा. In this case, see, if the insert employee method is called from another service, first क्या है, if the calling service method has transaction, then method does not make us of the existing transaction but creates its own transaction. हम लोग ने देखा था क्या है, अगर ऑलरेडी है तो वो क्या करेगा, फिर भी खुद का एक न्यू क्रिएट करेगा. इफ द कॉलिंग सर्विस मेथड डज नॉट हैव एनी ट्रांजैक्शन, द मेथड विल क्रिएट अ न्यू ट्रांजैक्शन. नहीं है तो वो बनाएगा, और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है फिर भी वो बनाएगा, राइट? सो इन द बोथ केस, in so in the case of requires new, the insert employee method is always creates a new transaction, right? So उसका वही हम लोग ने देखा हुआ था, right? So next is what, here are the organization service we have defined transaction propagation as required and the employee service have the transaction propagation defined requires new. Okay, so same thing. जी यहाँ पे ये यूज किया है, राइट? ऊपर से ट्रांजैक्शन यूज किया था यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग प्रॉपरली उसको बता रहे हैं कि रिक्वायर्स न्यू, राइट? आई होप सबको समझ में आ रहा है, राइट एवरीवन? Yes, ma'am. तो उन्होंने देखो यहाँ पे आउटपुट में लिखा है एम्प्लॉय सर्विस कॉल्ड यूजिंग ऑर्गेनाइजेशन सर्विस. ऑर्गेनाइजेशन सर्विस को लेके उन्होंने जब क्रिएट किया, क्रिएटिंग न्यू ट्रांजैक्शन, राइट? न्यू ट्रांजैक्शन क्रिएट किया, उसके बाद में सस्पेंड किया करंट ट्रांजैक्शन एंड देन क्रिएटिंग न्यू ट्रांजैक्शन मीन्स व्हाट, हम लोग ने देखा कि वो रिक्वायर्स न्यू क्या कर रहा है यहाँ पे, जो ऑलरेडी है पहले जो क्रिएट किया था. सी, क्रिएटिंग न्यू ट्रांजैक्शन, सो ऑलरेडी था ट्रांजैक्शन बट उसने क्या किया, जो ऑलरेडी था उसको सस्पेंड कर दिया, सस्पेंडिंग करंट ट्रांजैक्शन एंड देन इट इज क्रिएटिंग द न्यू वन, क्रिएटिंग न्यू ट्रांजैक्शन विथ एन, राइट? सो दिस इज द थिंग्स, ओके. Same over here, same देखो, suspending current transaction, creating new transaction with n, right?
और उसके बाद में वो कमिट और रिज्यूमिंग वो तो उन्होंने बाकी का कोड किया, बट द मेन पार्ट इज दिस टू लाइन्स. ओके, देन नेवर. ओके, नेवर में क्या होगा? सी, executed in no transaction, executed in transaction to even throw an exception. नेवर क्या करेगा? एक्सेप्शन थ्रो करने वाला. सो लेट्स सी फर्स्ट सिंपल में क्या होगा. एग्जीक्यूटेड इन नो ट्रांजैक्शन. ओके, सो ट्रांजैक्शनल प्रोपोगेशन डॉट नेवर एम्प्लॉय सर्विस इंसर्ट एम्प्लॉय. इफ insert employee method is called directly, it does not create a new transaction. Okay, then अभी ये सिनेरियो में क्या होगा? If the insert employee method is called from another service, okay, तो वो क्या होगा? If the calling service method has transaction, then method throws an exception. Okay, and if the calling service method does not have transaction, then method will not create a new one and run without transaction. So in the case of never, the insert employee method never uses transaction. तो transaction यूज ही नहीं करेगा. एक तो वो क्या करेगा? एक्सेप्शन थ्रो करेगा, अदरवाइज वो उसको रन ही नहीं करेगा. रन विदाउट ट्रांजैक्शन. समझ में आ रहा है क्या होगा? एक तो वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा अगर वो उसको नहीं मिला तो, अदरवाइज क्या करेगा? सॉरी, है तो, और नहीं मिला तो वो विदाउट दैट ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करेगा. नेवर. ओके, so here are organization service, we have defined the transaction propagation as required, and the employee service have transaction propagation defined as never. So same thing. कहाँ पे है? Yeah, over here. Okay, so we are defining key propagation is equals to propagation dot never. So this is the thing. So तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है? रेड 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 में उसने क्या किया है? एरर थ्रो किया है, राइट? So this is the thing, right? Okay, and the last one is mandatory. Mandatory मतलब what? Compulsory, right? होना ही चाहिए. So exception will be thrown. So यहाँ पे देखो propagation dot mandatory लिया है. एम्प्लॉय सर्विस इंसर्ट एम्प्लॉय. ओके, यहाँ पे देखो रिक्वायर्ड लिया है फर्स्ट एंड देन मैंडेटरी लिया है. ओके, सो जो फर्स्ट सर्विस है ऑर्गेनाइजेशन सर्विस, इट इज टेकिंग रिक्वायर्ड वन. उसके बाद में एम्प्लॉय सर्विस वाला मैंडेटरी यूज करेगा, राइट? सो लेट्स चेक उन्होंने क्या बोला है. इफ insert employee method is called directly, it will throw an exception, right? अगर डायरेक्टली किया है तो. और सेकंड अभी यहाँ पे क्या दिया है ये सिनारियो में, इफ द insert employee method is called from another service, first if the calling service method has transaction, then method make use of existing transaction, right? If the calling service method does not have transaction, the method will throw an exception. So in the case of mandatory, the insert employee method always needs the calling service. Otherwise वो क्या करेगा? Calling service नहीं मिला तो exception throw करेगा, right? So to have transaction else exception is thrown. So this is the thing. Mandatory है, अगर नहीं मिला तो वो directly exception throw करने वाला है. So here for the organization service, we have defined transaction proportion required, and the employee service have the transaction proportion defined as mandatory. Okay. So same thing. See, हम लोग यहाँ पे propagation dot mandatory use कर रहे हैं, right? So
See, over here, employee service called using organization service. Organization service को use करके अगर तुम लोग करोगे, so it will work properly. Okay. See, creating new transaction with name, participating in existing transaction, fine. Committing भी हो रहा है, but in the case of employee service called directly, it is showing you the exception, right? जो हम लोगों ने just discuss किया. So like this, we have completed our last chapter. Okay. Um, so अभी ये तुम लोग का सिलेबस भी खत्म हो गया है. जस्ट यहाँ पे ये चैप्टर में इम्पोर्टेंट क्या है? सो व्हाट इज ट्रांजैक्शन, एसिड प्रॉपर्टी एंड दिस 6 सिनारियोस. ओके, जहाँ पे ट्रांजैक्शंस जो सर्विसेज है, ओके, वो कैसे कौन से सिनारियो के ऊपर कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे बिहेव करेंगे, उसके ऊपर पूरा एक्सप्लेनेशन लिया है, राइट? तो आई होप सब लोग को सब समझ में आया रहेगा. और अगर ये यहाँ पे जो पीडीएफ, जैसे मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में बोला, पीडीएफ में थोड़ा सा डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज किया हुआ है. ओके, उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन सर्विस एंड एम्प्लॉय सर्विस ये एग्जाम्पल लिया है, एक सिनारियो लिया है. वी विल डिस्कस द क्लाइंट साइड एग्जाम्पल, उसे एक एग्जाम्पल लिया है, राइट? सो तुम लोग अगर नेट पे सर्च करोगे तो तुम लोग को इजी में मिल जाएगा. ओके, सो दिस इज द मेन थिंग कि क्या है, सर्विस 1 है, 2, 3, 4 ऐसे अगर अलग अलग सर्विसेज हैं, तो वहाँ पे ट्रांजैक्शंस कैसे परफॉर्म होते हैं अलग अलग सिनारियोज के ऊपर. ओके, एक दूसरे के ऊपर वो सर्विसेज डिपेंड रहते हैं. सो उस हिसाब से वो प्रोपोगेशन होता है. सो उन्होंने वो एक्सप्लेन किया हुआ है. ओके, so this is the thing. किसी को कुछ पूछना है अबाउट दिस और पॉइंट्स? टोटल कितने हैं? 6 है. ओके, ट्रांजैक्शन प्रोपोगेशन में. सो जस्ट इसमें एसिड प्रॉपर्टी करो और ये 6 पॉइंट्स प्रॉपर्ली करो, इट विल बी डन. ओके, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट विथ योर स्प्रिंग. ओके. एनी डाउट? कुछ पूछना है?